آج میری شادی تھی، سارا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں سہیلیوں کے درمیان سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میری سہیلیاں باہر کی پل پل کی خبریں مجھے آ کر سنا رہی تھی۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی، ایک لڑکی شور مچاتی ہوئی آئی اور سب کو بتا کر یہ جا وہ جا۔ پل بھر میں سارا کمرہ خالی ہو گیا اور میں سوچوں میں ڈوب گئی۔ میری 2 بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھی۔ اس کے علاوہ میرے 4 بھائی تھے اور چاروں مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ میرے جہیز کے لیے انہوں نے ہر چیز بنائی، کپڑے بھی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ جن سے میری شادی ہو رہی تھی وہ میرے چچا زاد تھے، وہ قرآن پاک کے حافظ تھے۔ ان کا سارا گھرانہ دیندار تھا، اس لیے میرے ماں باپ نے میرا رشتہ وہاں طے کر دیا۔ گو وہ لوگ درمیانے طبقے کے لوگ تھے، مگر بہت مخلص اور محبت کرنے والے تھے۔ میرے ابو اچھے خاصے پیسے والے تھے، اس لیے والدین کے گھر مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ بہرحال میں اپنی شادی سے خوش تھی۔ جب میں بیاہ کر اپنے چچا کے گھر آئی تو مجھے اتنی محبت ملی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری 2 نندیں اور 2 دیور تھے۔ ساس سسر نے ماں باپ سے بڑھ کر مجھے پیار دیا۔ میرے شوہر، جن کا نام ظفر تھا، بہت اچھے اور مخلص انسان تھے۔ میں اس چھوٹی سی جنت میں آ کر بہت خوش تھی۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے اتنا چاہنے والا خاندان ملا۔ میں ہفتے 2 ہفتے بعد میکے آ جاتی، مگر اب میکے میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ایک بار میں جب 3-4 دن کے لیے میکے آئی تو وہاں ہماری ایک ہمسائی آ گئی اور مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اور سناؤ بیٹا، تمہارے سسرال والے اور تمہارا شوہر کیسے ہیں؟ تمہارا خیال بھی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ میری ہمسائی نے خریدنے کے سے انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھی رکھے۔ میری ہمسائی بولی اور پھر امی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ میں اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے میں داخل ہوئیں اور بولی، ماریا بیٹے، میں نے نسرین سے بات کی ہے۔ کون سی بات اماں؟ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا۔ ارے وہی جو تم کہہ رہی تھی کہ ظفر تمہیں چاہتا تو بہت ہے مگر کبھی اظہار نہیں کرتا اور تھوڑا ضدی بھی ہے۔ میں نے نسرین کو بتایا تو اس نے یہ تعویذ دیا ہے، اپنے سرہانے رکھ کر سو جایا کرنا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں نے اپنے پلو سے تعویذ کھول کر میری طرف بڑھایا۔ مگر اماں، میں نے تو سرسری طور پر آپ سے بات کی تھی، میرا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ آپ یوں تعویذ گنڈے کرواتی پھریں۔ اور پھر خالہ نسرین کو بتانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں نے الجھتے ہوئے کہا۔ ارے اس نے تمہارے بھلے کا ہی سوچا ہے، بس جیسا میں نے کہا ویسا ہی کرنا۔ لے پکڑ۔ اماں نے زبردستی تعویذ میرے ہاتھ میں تھمایا اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تعویذ پکڑ کر پرس میں رکھ لیا۔ 3 دن بعد میں واپس سسرال آ گئی اور تعویذ مجھے یاد ہی نہ رہا۔ چند روز بعد میں نے ویسے ہی پرس سے کوئی چیز لینے کے لیے ایسے ہی کھولا تو تعویذ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں تو اس تعویذ کو یکسر بھلا چکی تھی۔ اب میرے ذہن میں تجسس نے سر ابھارا کہ سرہانے کے نیچے رکھوں، پھر دیکھیں گے اس کا کیا اثر ہے۔ چنانچہ میں نے وہ تعویذ سرہانے کے نیچے رکھ دیا۔ تعویذ شاید زیادہ ہی اثر والا تھا۔ چند ہی روز بعد ظفر اپنی محبت کا کھلم کھلا مجھ سے اظہار کرنے لگے۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اب تو ضد بھی نہیں کرتے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ میرا تعویذ پر ایمان پختہ ہو گیا، مگر ایک بات ضرور ہوئی، اور شاید اس تعویذ کی وجہ سے ہی، کہ میں بہت چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ کافی دنوں بعد میں میکے گئی تو اس ہمسائی سے پھر ملاقات ہو گئی جس نے اماں کو تعویذ لا کر دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے لائے ہوئے تعویذ نے بڑا کام دکھایا ہے۔ ایک بات میری سن لو ماریا بیٹا، اپنے سسرال والوں کو زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، بس ذرا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ خالہ نسرین بڑے رازدارانہ انداز میں بولی، مگر آنٹی وہ سب لوگ تو بہت اچھے ہیں۔ میں نے جلدی سے ان کی حمایت کی۔ ارے لو جی، وہ اوپر سے اچھے نظر آ رہے ہیں۔ جو لوگ اوپر سے اچھے نظر آئیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اندر سے بھی ویسے ہوں۔ ارے وہ کیوں پرائی لڑکیوں کو اپنی بیٹی سمجھیں گے؟ وہ تو پرائی لڑکیوں کو نوکر سمجھتے ہیں جس پر ہر وقت حکم چلایا جا سکے۔ خالہ نسرین نہ جانے کیوں مجھے تیش دلا رہی تھی۔ چڑچڑی تو میں پہلے ہی ہو چکی تھی،
अब जो इनके बारे में इस तरह की बातें सुनी तो मैं अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गई और मैंने बड़ी सादगी से खाला नसरीन की बातों पर यकीन कर लिया। इन्होंने मुझे एक और तावीज़ दिया। खाला नसरीन बड़ी चालाक औरत थी। इसकी अपनी तो कोई बेटी ना थी और दूसरों की बेटियों को वो ससुराल में बसने नहीं देती थी। कुछ इसी तरह ही मेरे साथ हुआ। मैं खाला नसरीन को अपना हमदर्द समझ बैठी, मगर वो एक नंबर की फसादी और मकार औरत थी। दूसरी बात ये कि वो सारा दिन इधर उधर फिरती थी। कई गलत किस्म के लोगों से इसका मेल जोल भी था, मगर मैं इसके किरदार से नावाकिफ थी। काश मैं इसकी बातों में ना आती और अपना घर अपने हाथों से ना उजाड़ती। खैर, इसने मुझे दूसरी मर्तबा जो तावीज़ दिया मैंने वहीं रखा जहाँ इसने कहा, भाभी भाभी प्लीज़ 2 कप चाय बना दें, अब्बू के दोस्त आए हैं, मेरा कल टेस्ट है, मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। मेरी नंद ने मेरे पास आकर मिन्नत भरे लहजे में कहा। खाला नसरीन की बात एकदम मेरे जहन में आ गई। मुझे यूं लगा जैसे मेरी नंद मुझ पर हुक्म चला रही है। मुझे एकदम शदीद गुस्सा आ गया। मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम लोगों की जो तुम्हें भी पकाकर खिलाऊं और जो मेहमान आए इनकी भी तवाज़ा करूं। मुझे आप लोग खरीद कर लाए हैं जो मैं आपकी हर बात मानूं। मुझसे नहीं होते तुम लोगों के स्यापे, खुद कर लिया करो। मैं जो बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई। मेरी नंद आंखें फाड़े यूं मेरी तरफ देख रही थी जैसे इसे अपने कानों पर यकीन न आ रहा हो कि वाकई इसने जो सुना है मेरे मुंह से सुना है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? वो हैरत के मारे मेरी तरफ देखते हुए बोली। जो मैंने कहा है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने ठीके लहजे में कहा। मुझे नहीं पता भाभी आपको किसकी कौन सी बात नागवार गुजर रही है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माजरत चाहती हूँ, आप खफा ना हो, मैं चाय खुद बना लेती हूँ। ये कहकर वो चली गई। मैं सर झटक कर अपने कामों में मगन हो गई। मैं ये इतराफ़ करने पर मजबूर हूँ कि जैसे मेरे ससुराल वाले थे शायद ही किसी लड़की के होंगे। मेरी नंदों का भाभी भाभी कहते हुए मुंह नहीं थकता था। मेरी जरा सी तकलीफ पर वो तड़प उठती। मुझे कभी बुखार वगैरह हो जाता तो कई दिन मुझे बिस्तर से ना उठने देती। मेरे देवरों ने सके भाइयों से बढ़कर मुझे प्यार दिया और मैं इनकी मोहब्बतें पहचान न सकी। मैं इन जैसे अजीम लोगों की कदर ना कर सकी और ये पछतावा शायद मेरी कब्र तक मेरे साथ जाएगा। फिर यूं हुआ कि आए दिन में सास नंदों से झगड़ा कर मैके आने लगी। मेरी सास मुझे रोकती रहती, मगर मेरे जहन में ना जाने कौन सा खन्नास भर गया था कि मैं इनकी मोहब्बतों को पसे पुश डालती रही। और फिर जब मैं मैके आती तो अम्मा और खाला नसरीन मिलकर मेरे जहन को और गंदा कर देती। मेरे ससुराल वालों के खिलाफ मुझे ऐसा भड़काती कि मैं शोला बन जाती और पहले से ज्यादा इन लोगों से बदतमीजी करती। वो ऐसे रहमदिल और नेक लोग थे कि मेरी खताओं के बावजूद चंद रोज बाद मुझे मनाकर ले जाते। इस अरसे में अल्लाह ताला ने मुझे 2 बच्चों से नवाजा, जिनमें एक बेटा था और एक बेटी। चाहिए तो ये था कि बच्चों को पाकर मैं सब कुछ खत्म कर देती, मगर मैं और ज्यादा मगरूर हो गई। बात बात पर मैं इनको ताने देती, लम्हा लम्हा इनको तैश दिलाती, मगर वो ऐसे सब्र वाले थे कि कभी उफ तक ना करते। बच्चों को वो बेइंतहा चाहते थे, मगर मैं बच्चों को भी इनसे दूर रखती थी। एक दिन मेरे ससुर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। आपने मुझे बुलाया था? मैंने इनके कमरे में जाकर कहा। हाँ बेटी, यहाँ आओ, इधर मेरे पास। इन्होंने चारपाई पर मेरे लिए जगह बनाई। मैं वहाँ बैठ गई तो चंद लम्हे के बाद वो बोले, मारिया बेटा, हम तुम्हें ब्याह कर लाए हैं इतनी खुशियों इतनी मोहब्बतों के साथ। हमारा ये मकसद हरगिज ना था कि हम तुम्हें गैर समझें या तुम पर जुल्म करें। हम तुम्हारे साथ किसी गलत रवैये का सोच भी नहीं सकते। वैसे भी हम बेटियों वाले हैं और कोई भी बेटियों वाले वालिदैन अपनी बहुओं के बारे में सर्द रवैया नहीं रखते। बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह तुम पहले थी, जैसे तुम पहले खुश खुश रहती थी, वैसे ही अब रहा करो। मुझे नहीं पता तुम्हारे ज़हन और दिल को किसने वरगलाया है, तुम्हें गलत रास्ते पर कौन चला रहा है, मगर बेटा जिस रास्ते पर तुम चल निकली हो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है। बेटा मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, अपने घर को अपने ही हाथों तबाही के दहाने पर मत ले जाओ, क्योंकि घर उजाड़ने में तो देर नहीं लगती मगर बनाने में बड़ा वक्त लगता है। एक उम्र गुजर जाती है घर बनाने में।
मैं सर झुकाए अपने ससुर की बातें सुन रही थी। मैंने इनसे माफ़ी मांगी और आइंदा के लिए यकीन दिलाया कि ऐसा नहीं होगा। मेरे ससुर ने मुझे ढेरों दुआएं दी। जब भी मैं मैके जाती तो मुझे नए सिरे से आग की तरफ धिका दिया जाता। मैं पढ़ी लिखी बाशऊर होने के बावजूद अपनी अम्मा और खाला नसरीन की बातों पर सच्चे दिल से यकीन रखती और अपने ससुराल वालों के खिलाफ फिर से महाज कायम कर लेती। मैं कम अक्ल बेवकूफ़ लड़की इतना भी ना सोच सकी कि जो कांटे में बिछा रही हूँ कल को खुद इन पर मैंने गुजरना है। इन खारजारों ने मेरे ही जीवन को लहूलुहान करना है। लफ्ज़ों की जो आग मैं इन पर बरसा रही थी वो आग मेरा ही घर जलाकर राख कर देंगी। दिन गुजरते रहे। अब इन दिनों मुझ पर एक नया खप्त सवार हो गया था। मैंने जफर से अलहदा घर का मुतालबा कर लिया। मारिया, आखिर तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। जफर ने झुंझलाकर कहा। क्यों मुमकिन नहीं है? और फिर मेरी ख्वाहिश नाजायज़ तो नहीं है? हर औरत चाहती है कि इसका अलहदा घर हो। अगर मैंने ऐसा सोच लिया तो कौन सी कयामत आ गई? जवाबन मैंने बिगड़ कर कहा, ठीक है तुम्हारी ख्वाहिश बचा है, बल्कि तुम्हारी बात में वजन भी है, मगर तुम खुद सोचो कि मेरी अभी 2 बहनें हैं जिनकी शादी करनी है। 2 भाइयों की पढ़ाई का मसला है। मैं सबसे बड़ा हूँ। ये जिम्मेदारी मुझ पर है। अभी हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मैं कोई घर किराए पर ले लूँ या खरीदूं। जैसे ही हालात दुरुस्त होंगे मैं तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा, मगर फ़िलहाल मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आपके बहन भाइयों का ठेका लिया हुआ है कि इनकी वजह से मैं अपनी ख्वाहिशों को दबाती रहूं? आपके हालात तो सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होने वाले और मैं तमाम उम्र यूं ही नहीं रह सकती। आपके घर वालों के ताने सुन सुनकर मैंने ज़िद्दी और अटल लहजे में कहा, मारिया, तुम ख्वाम मेरे वालिदैन और बहन भाइयों पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इन्होंने कब तुम्हें ताने दिए हैं? वो लोग तो सुलह और अमन से रहने की कोशिश करते हैं। सफ़र बोले, हाँ मैं ही बुरी हूँ, मैं ही लड़ाका हूँ, बाकी सब तो पारसा हैं। गुनाहगार तो मैं ही ठहरी। अल्लाह करे जैसा आप मेरे साथ करते हैं आपकी अपनी बहनों के आगे आए। मैंने रोते हुए दामन फैलाकर बद्दुआ दी। जो किसी के लिए बद्दुआएं करता है इसके अपने ही आगे आती हैं। बहरहाल मैं तुम्हें नहीं समझा सकता और ना ही फिलहाल तुम्हें अलहदा घर लेकर दे सकता हूँ। तुम्हारे जी में जो आता है करो। जफर इतना कहकर चले गए और मैं वहीं बैठकर अपने नसीब को रोने लगी। मेरे दिल से 100 बद्दुआएं निकल रही थी। यूं ही नाराजगी में 2-3 रोज गुजर गए। मैंने सब घर वालों से बोलना छोड़ दिया था। शाम का वक्त था। मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही थी जब मेरी छोटी नंद अंदर दाखिल हुई। भाभी, मुझे आपसे कुछ कहना है, इसने आते ही कहा। कहो। मैंने गोया इस पर एहसान किया। बात यह है भाभी कि मुझे आपकी ये बात कतन समझ नहीं आ रही कि आप अलग घर का मुतालबा क्यों कर रही हैं, हालांकि ये सारा का सारा घर आपका है। मैं मानती हूँ भाभी कि हर औरत की ख्वाहिश होती है कि इसका अपना घर हो जिसे वो अपनी मर्जी से संवारे, इसकी आराइश करे। आपके पास तो ये इतना बड़ा घर है। हम घर की लड़कियां तो मेहमान हैं। ये हमारा मुस्तकिल ठिकाना तो नहीं है। भाई अभी छोटे हैं और वालिदैन ने आपको कभी किसी बात से नहीं रोका। आप जिस तरह चाहें अपने घर को सजाएं बनाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। इस घर के चप्पे चप्पे पर आपका हक है। ये आपकी जन्नत है भाभी, और आप अपनी जन्नत को अपने हाथों जहन्नुम के हवाले मत करें। ये गुलशन तो आपसे और आपके बच्चों से आबाद है। प्लीज़ भाभी, कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा कि ये नन्हे मासूम फूल खिलने से पहले मुरझा जाएं। आपका कोई भी इंतहाई कदम आपके बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर सकता है भाभी। अगर हो सके तो मेरी बातों पर ज़रूर गौर कीजिएगा। इतना कहकर वो रुकी नहीं। इसकी आंखों में तैरती नमी मैंने महसूस कर ली थी। काश मैं संभल जाती। मैं इस छोटी सी लड़की की बड़ी बड़ी बातों को समझ पाती तो आज मैं गुमनाम होकर ना बैठी होती, मगर मेरी अक्ल पर तो जैसे पर्दे पड़ चुके थे। मैं समझती थी कि ये लोग बिलाखिर मेरी बात मान लेंगे। मेरा दिल पत्थर हो चुका था जिस पर कोई बात, कोई नसीहत असर नहीं करती थी। मेरी आंखें अगर देखती तो सिर्फ अलहदा घर के ख्वाब ही देखती। मेरे दिल में अगर कोई शोर उठता तो अलग घर बसाने का ही उठता। मेरे लब और जुबान अगर कुछ बोलते तो यही कि मुझे अलग घर चाहिए। इसी बात पर मैं रूठ कर मैके आ बैठी।
सास ससुर ने लाख कहा था कि मत जाओ, बच्चों के स्कूल के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, मगर मुझे किसी नफे नुकसान की कोई परवाह न थी। मुझ पर तो बस एक ही धुन सवार थी कि मैं ससुराल वालों से अलहदा होकर रहूं। इस दफा मेरे ससुराल वाले भी लेने के लिए मुझे नहीं आए और मैं भी ये तहिया कर चुकी थी कि अब तब ही जाऊंगी जब अलग घर लेकर देंगे। मेरे वालिद ने मुझे काफी समझाया कि जो कुछ भी था मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था। अम्मा मेरे साथ थी और ये ख्याल मुझे अब आ रहा था कि बेटी का घर बसाने और उजाड़ने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर अम्मा मेरे पहले ही दिन रूठ कर आने से मना कर देती और अगर मैं रूठ कर आ ही जाती थी तो समझा बुझा कर वापस भिजवा देती तो शायद आज ये नौबत ना आती। अम्मा तो मेरे इस तरह लड़ झगड़ कर आने की हौसला अफजाई करती थी। इससे मुझे आइंदा के लिए खुली छुट्टी मिल जाती थी। तकरीबन 3 माह के बाद मेरे शोहर का फोन आया। रस्मी सलाम दुआ के बाद इन्होंने बच्चों के बारे में पूछा। घर आने का इरादा नहीं है क्या? इन्होंने मतलब की बात पूछी। हरगिज़ नहीं। अब की बार मैंने हतमी अंदाज में कहा, सोच लो मारिया, ऐसा ना हो कि बाद में किसी बात का पछतावा रह जाए। मैंने सोच समझ कर कहा है, या तो अलग घर या फिर मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। या फिर क्या? जफर ने जल्दी से पूछा। या फिर ये कि मैं सारी जिंदगी वहां नहीं आऊंगी। बेशक आप मुझे छोड़ दें। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, जफर ने खटाक से फोन बंद कर दिया। मेरा ख्याल ही नहीं बल्कि मेरा यकीन था कि वो मुझे हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि मेरी बात मान लेंगे। इस दिन मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी जब कॉल बेल आई। घर में मेरे सिवा और कोई ना था। बच्चे स्कूल गए हुए थे, सो दरवाजा खोलने मुझे ही जाना पड़ा। डाकिया था। इसने रजिस्ट्री मुझे पकड़ाई, रसीद पर दस्तखत लिए और चला गया। कहाँ से आई है ये रजिस्ट्री? मैंने बड़बड़ा कर खुद से पूछा। तजस्सुस के मारे मैंने वहीं खड़े होकर लिफाफा खोलने लगी। सबसे ऊपर एक तय किया हुआ कागज था। मैंने कागज खोलकर पढ़ना शुरू किया। जूं मैं पढ़ती गई मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बदन से कोई झटके दे कर रूह निकाल रहा हो। मेरा जिस्म बर्फ की मानित सर्द हो गया था। मेरे दिल को ऐसे जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मेरी टांगे और हाथ कांप रहे थे। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया था। मैं बमुश्किल वहां से चलकर सहन में पड़ी चारपाई पर आकर गिर गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कांच का बना हुआ वो टुकड़ा हूँ जो पल में टूटकर किरची किरची हो गया है। मेरे गले में आंसुओं का गोला बन गया और आंखें यूं बरस रही थी कि बादल भी अपने बरसने पर शर्मा जाते। जफर ने मुझे तलाक दे दी थी और साथ ही लेटर था जिसमें लिखा था, मारिया मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। दिली तौर पर मुझे इस बात का बहुत रंज है, मगर मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तुम जैसी औरत जो खुद चाहती है कि इसे तलाक मिले, वो इस काबिल नहीं होती कि इसके इस तरह कहने के बाद इसे बसाया जाए। तुम्हारा अंजाम जैसा भी हुआ, इसमें तुम्हारा ही हाथ है। तुम अपनी बर्बादी की खुद जिम्मेदार हो, इसलिए तुम किसी को इसका मोरदुल इल्जाम नहीं ठहरा सकती। अलबत्ता बच्चे मेरे हैं और मैं चंद रोज में इन्हें लेने आऊंगा। तुम्हारा जहेज तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। वस्सलाम जफर। इसके बाद वो आकर अपने बच्चे ले गया। मेरे जहेज की एक एक चीज वापस कर दी। इसके इस तरह बच्चे ले जाने पर अम्मा ने बहुत वावेला किया, बहुत शोर मचाया, मगर मैंने इन्हें चुप करा दिया। अम्मा आप खामोश हो जाएं। जो मेरे साथ हुआ इसका इल्जाम किसी को नहीं दूंगी, मगर इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप चाहती तो मेरा घर इस तरह ना उजड़ता, मैं बर्बाद ना होती। मैंने हिचकियां लेते हुए कहा, क्या कह रही हो बेटी? भला मैंने क्या कहा है? अम्मा ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा। अम्मा आपने कुछ किया नहीं, मगर आप बहुत कुछ कर सकती थी। अगर मैं ससुराल की बातें आपको आकर बताती तो आप मुझे मना कर सकती थी। अगर मैं रूठ कर आती थी तो आप मुझे समझा सकती थी। जिन्होंने घर संवारने हो वो रूठ कर नहीं आया करती। अम्मा अगर मैं इतने अच्छे ससुराल वालों के खिलाफ कुछ कहती थी तो आप सरजनिश कर सकती थी कि जैसा भी हो कभी घर की बातें बाहर नहीं की जाती। आपने तो अम्मा कभी कुछ ना कहा, कभी कुछ ना समझाया। मैं खुद ही बर्बादियों की तरफ बढ़ती चली गई। किसी ने मेरी इस्लाह नहीं की। मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ। मैंने अपना घर खुद बर्बाद कर डाला है।
میں نے اپنا آشیاں خود جلا ڈالا ہے، میں نے اپنی جنت کو خود شعلوں کے حوالے کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور پاگلوں کی طرح اپنا سر دیوار پر مارنے لگی۔ آج یہ حال ہے کہ بھائی شادیاں کر کے اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن ہیں، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اور ہر وقت بھابھیوں کے تانے تشنوں میں گھری ایک بے سہارا عورت ہوں میں، جس کا سوائے اللہ کے اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ بھابھیاں تو ایک طرف، بھائی جو کبھی میرے ناز اٹھاتے تھکتے نہیں تھے، آج یوں دیکھتے ہیں جیسے میں ان کے لیے اجنبی ہوں۔ ان کی اجنبی نگاہیں میری روح میں پیوست ہو کر روح کو چھلنی چھلنی کر دیتی ہیں۔ میرا وجود اندر سے بکھر چکا ہے، میں ایک زندہ لاش کی مانند ہو چکی ہوں۔ بھابھیوں نے مجھے اسٹور میں پھینک دیا ہے تاکہ میری نحوست ان پر اور ان کے بچوں پر نہ پڑے۔ یہاں اس اسٹور میں دن رات اپنے نصیبوں پر روتی اور کرتی رہتی ہوں۔ شاید خدا کو میری اس بے بسی اور بدحالی پر ترس آ جائے اور مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تمام بہنوں بیٹیوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ خدا کے لیے خود میں صبر اور استقلال پیدا کرو۔ اپنے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو گھر کی چار دیواری میں ختم کر دیا کرو۔ ایک عورت اگر چاہے تو اپنا گھر جنت بنا سکتی ہے، اور یہی عورت اگر چاہے تو اپنے گھر کو، گھر کے مکینوں کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ گھر بنانا اور سنوارنا ایک عورت پر منحصر ہے، اور کچھ نہیں تو مجھ سے عبرت پکڑو تاکہ میری طرح بعد میں